Hello students, welcome to computer online classes. So today we are going to start our new chapter. Okay, so the chapter which we are going to study, it is about editing text. Okay, so how we can edit text in computer. So there some program is there. So now we are going to study the new chapter in which we will study how to edit text in a beautiful and attractive way. Okay, so the chapter is introduction to word. Okay, chapter 6, introduction to word. So in this chapter, the topics which we are going to study in this chapter are starting MS Word 2010, components of MS Word 2010, creating a new document, formatting text, saving a document, opening a saved document, and last topic is closing or exiting MS Word. So these are the topics which we will study in this chapter. Okay, so friends, do you know how to type and edit text on a computer? क्या आपको पता है कि आप कंप्यूटर में कैसे टेक्स्ट को जो है टाइप करते हैं, कैसे एडिट करते हैं? प्रोग्राम सच एज वर्ड पैड आर यूज टू डू सो. तो वर्ड पैड एक प्रोग्राम है जिसमें हम ये दोनों वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम टाइप और एडिट कर सकते हैं. तो दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर. तो इस ऐसे प्रोग्राम्स को हम जिसमें हम जो है अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर. एंड among all the word processor, MS Word is another such popular word processor. तो वर्ड प्रोसेसर में से MS Word भी एक ऐसा प्रोसेसर है जो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप और एडिट कर सकते हैं. So MS Word is a part of the Microsoft Office package developed by Microsoft Corporation. तो MS Word क्या है? MS Word जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है एंड विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. जिसे जो कौन डेवलप किया था? जिसे जो है इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. सो हियर आर सम स्टेप्स हाउ टू स्टार्ट MS Word 2010 एंड द स्टेप्स आर: first you will click on start button. I think all are knowing where is start button present. So first click on start button and after that click on all programs. And when you will click on all programs, here you can see a number of list will open. Okay, or in that you will click on Microsoft Office. Okay, and after clicking on Microsoft Office you can see all the Microsoft programs are opened, and in that you will click on Microsoft Word. Okay, so these are the 4 steps how you can start MS Word. So first step is, first you will click on start button, then you will click on all programs, then Microsoft Office, and at last you will click on Microsoft Word 2010. So by this your MS Word screen will be opened. So here you can see the screen. Okay, this type of screen will open. जब आप जो MS Word को ओपन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा. So now we are going to study components of MS Word 2010. Okay, components of MS Word 2010. So here some components are given here. So this is quick access toolbar, file tab is there, ribbon is there, horizontal ruler is there, cursor is there, vertical ruler, title bar, minimize button. You can see here 3 buttons are there. This is minimize button, and middle one is restore or maximize button, and last is that is close button. Here one question mark is there. You can see in your book it is Microsoft Word help button. Here it is minimize, expand the ribbon. Here one button is given by which you can minimize and expand the ribbon, and this white area is document area, and this one is vertical bar. View button is given, zoom slider is given, so status bar is given. So these are the components of MS Word. Okay, so how many components are there? So there are, I think, more than 10 components in MS Word. So let me count: 1, 2, 17 components are there in MS Word. Okay,
So these are the parts or components of MS Word. So now we are going to study about title bar. Okay, what is title bar? Title bar, here you can see it is present on the top of screen. Here you can see this is title bar where you can see document 1 Microsoft Word is written. जहाँ पे document 1 Microsoft Word लिखा है, that full bar is known as title bar. So the title bar is present at the top of the screen. Title bar screen के top पे present होता है. It displays the name of the document and program name. और ये जो है उस डॉक्यूमेंट के नेम, डॉक्यूमेंट का या जो प्रोग्राम का नेम है उसको डिस्प्ले करता है. इट हैज़ ए क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट. और आप देख सकते हैं कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस टूल बार है. द क्विक एक्सेस टूल बार हैज़ शॉर्टकट आइकन्स फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड. तो क्विक एक्सेस टूल बार के पास कुछ शॉर्टकट आइकन्स होते हैं जो हम ज़्यादातर शॉर्टकट आइकन्स होते हैं फॉर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड, जैसे undo is there, redo is there and save. These are the commands which is present in quick access toolbar. So the title bar also contains the minimize, restore, down or maximize and close button. So these are three buttons which you can see at the right corner of the title bar. Okay, so first is minimize button, restore or maximize button, and last is close button. So these are the three buttons which is present at the right corner of the title bar. So the title bar also the minimize button reduces the screen to an icon on the taskbar. minimize button क्या करता है? minimize button जो आपका ये स्क्रीन की साइज़ है उसको वो रिड्यूस करता है. restore down क्या करता है? it makes the screen smaller than before. ये जो है स्क्रीन को जो है स्मॉलर बनाता है. ठीक है, ये स्क्रीन को स्मॉलर बनाता है. जो स्क्रीन की पहली साइज़ थी उस साइज़ से वो जो है स्मॉलर बनाता है. एंड दिस बटन विल नाउ टर्न इनटू मैक्सिमाइज बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन द स्क्रीन टर्न्स इट टू इट्स ओरिजिनल साइज. और जब आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर ये जो है अपने जो इसका पहले का साइज़ रहेगा, ओरिजिनल साइज़ जो इसका रहेगा उस साइज़ में ये आ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज क्लोज बटन. द क्लोज बटन क्लोजेज द MS वर्ड स्क्रीन. क्लोज बटन क्या करता है? वो MS वर्ड स्क्रीन को क्लोज करता है. नाउ नेक्स्ट इज रिबन. ओके, नाउ वी आर नॉट रिबन दैट गर्ल्स आर टाइंग ऑन देयर हेयर, नॉट दैट बटन, रिबन. ओके, सो व्हाट इज रिबन? द रिबन हैज़ टू पार्ट्स, टैप्स एंड ग्रुप्स. रिबन के पास टू पार्ट्स होते हैं. लेट मी शो यू. रिबन के पास टू पार्ट्स होते हैं. एक होता है टैप, एक होता है ग्रुप. ओके, सो दिस ऑल, ये ऊपर जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, तो ये सब जहाँ पे लिखा है ये होता है टैब. ओके, और ये जो ग्रुप्स आप देखते हैं, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ये सब होता है ग्रुप्स. So ribbon has two parts. First is tab and second one is group. So each tab has commands arranged in many groups. ठीक है, तो हर एक टैब के पास जो है कमांड्स होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज है. तो व्हेन यू क्लिक ऑन ए टैब इट ओपन्स डिस्प्लेइंग कमांड्स इन डिफरेंट ग्रुप. तो जब आप टैब पे क्लिक करते हैं तो हर एक टैब जो है अपने लिस्ट ऑफ कमांड्स को ओपन करता है और लिस्ट ऑफ कमांड्स को अपने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ओपन करता है. द मिनिमाइज द रिबन बटन ऑन द राइट मिनिमाइज द रिबन एंड डिस्प्लेस ओनली द टैब. यहाँ पे मिनिमाइज बटन दिया हुआ आप देख सकते हैं इन योर बुक. यह मिनिमाइज और एक्सपैंड द रिबन बटन है. ओके, तो अगर आपको मिनिमाइज़ करना है या फिर जो है इसको एक्सपैंड करना है तो बाय क्लिकिंग ऑन दिस यू कैन एक्सपैंड ऑल्सो एंड यू कैन मिनिमाइज ऑल्सो. Now next is file tab. Okay, file tab is present on the left corner of the ribbon. File tab आपका रिबन के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है. Okay, and in file tab you can see many commands are also given. So file tab कहाँ पे present है? It is present on the left corner of the ribbon and it has many commands. That is, you can see save, save as, open, close, print, exit. So like that, so many commands are given in file tab. Okay, next is document area.
document area, the area where we type the text. Okay, document area is the blank white area. document area एक blank white area होता है, आप देखे हैं, आप you can see here this area, this white full area. Okay, this is drawing area, document area, sorry, this is document area. So the document area is the blank white area which is used to type text. तो डॉक्यूमेंट एरिया एक ब्लैंक वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं. रूलर्स, देयर आर टू रूलर्स, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूलर एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल रूलर. लेट मी शो यू. हियर यू कैन सी दिस वन इज दिस अप पार्ट, इट इज़ हॉरिजॉन्टल रूलर. ठीक है, ये ऊपर है जो लाइन आप देख सकते हैं स्केल बनी है वो है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर और ये आपका वर्टिकल रूलर है. ओके, द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर जो है डॉक्यूमेंट के टॉप पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. और ये क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करता है. वर्टिकल रूलर, इट इज़ प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया. वर्टिकल रूलर जो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ यूज टू सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ ए पेज. और ये जो है टॉप और बॉटम मार्जिन ऑफ ए, जो पेज का टॉप और बॉटम मार्जिन होता है ये इसको सेट करता है. नेक्स्ट इज कर्सर. व्हाट इज कर्सर? A cursor is a small flashing vertical line. You can also say blinking also you can say and you can say flashing also. ठीक है, आप जो है blinking भी बोल सकते हैं, flashing बोल सकते हैं. ओके, so a cursor is a small flashing vertical line in the document area. तो cursor एक small flashing या blinking vertical line होता है document area पे. It shows the position of the text you type. ये क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है, ये जो है जहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करना है वहाँ का पोजीशन ये शो करता है. अंडरस्टूड अप टू हियर? नेक्स्ट इज स्टेटस बार. द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्टेटस बार जो है आप देख सकते हैं ये है स्टेटस बार और ये जो है स्क्रीन के बॉटम पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड इट डिस्प्लेस पेज नंबर एंड नंबर ऑफ वर्ड. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेटस बार का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे पेज नंबर शो करता है और कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं वो शो करता है. ओके, एंड ऑन द राइट हैंड इट डिस्प्लेस द व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर. और राइट साइड जो है व्यू बटन प्रेजेंट होता है और जूम स्लाइडर प्रेजेंट होता है. ओके, सो द व्यू बटन हेल्प इन व्यूइंग द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज. व्यू बटन क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट को डिफरेंट वे से डिफरेंट तरीके से वो जो है व्यू करने में हेल्प करता है. द जूम स्लाइडर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द व्यूइंग एरिया. और जूम स्लाइडर क्या करता है, वो जो व्यूइंग एरिया होता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है. क्लिक ऑन द जूम इन बटन दैट इज़ प्लस. जब जूम इन का मतलब होता है प्लस. ठीक है, जहाँ पे प्लस साइन है, जब आप उधर जो है आप ये जो बीच का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीच का जो बटन है उसको जब आप जब पॉजिटिव के साइड ले जाएंगे तो आपका एरिया जो है इस यू विल सी दैट इज स्मॉलर एरिया ऑफ द पेज इन लार्जर व्यू. तब आप जो देखेंगे कि जो आपका पेज है वो जो है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है. और जब आप जूम आउट मतलब आप जो है जब माइनस के साइन अगर आप मूव करोगे तो जो आपका जो बड़ा वाला पेज था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. अंडरस्टूड व्हाट इज zoom in and zoom out? Next is status bar. There are two scroll bars. ठीक है, two scroll bars होते हैं. The vertical scroll bar is present at the right of the screen. Vertical scroll bar जो है वो स्क्रीन के राइट साइड प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मूव द डॉक्यूमेंट एरिया अप और डाउन. और ये डॉक्यूमेंट एरिया को ऊपर नीचे मूव करता है. The horizontal scroll bar is located above the status bar. और horizontal scroll bar जो है status bar के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट एरिया को लेफ्ट और राइट साइड मूव करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट. हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट. सो टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन फाइल टैब. पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे. ओके, और फाइल टैब पे न्यू का ऑप्शन रहेगा. ठीक है, यू कैन सी
इन फाइल टैब न्यू ऑप्शन इज देयर, यू विल क्लिक ऑन न्यू, और जब न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक स्क्रीन विंडो ओपन होगा स्क्रीन पे आपके, जहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल बी created on your screen. Next is formatting text. Okay, how to format text. So you can change the appearance or presentation of the text by changing font. Listen here students, आप किसी भी टेक्स्ट का अपीयरेंस या प्रेजेंटेशन जो है उसका फॉन्ट या फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर को चेंज करके आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जिसे हम फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट कहते हैं। तो यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बिफोर फॉर्मेटिंग, और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के पहले हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट, फर्स्ट टेक द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, पहले आप अपने कर्सर को जो है ये जो लाइक एग्जांपल माई स्कूल जो दिया है, तो माई स्कूल का जो बिगिनिंग लेटर है, बिगिनिंग टेक्स्ट मतलब यहाँ पे एम है, ठीक है, तो आप बिगिनिंग टेक्स्ट पे आप कर्सर को लेके जाएंगे एंड यूजिंग एरो और होम की आप, ठीक है, और आप कैसे जाएंगे वहाँ पे, आप होम की या एरो की हेल्प से आप टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर पे जाएंगे। एंड आफ्टर दैट प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, उसके बाद आप उस पर प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस द राइट एरो की, और उसके बाद आप जो है राइट एरो की प्रेस करेंगे, जिससे आपका जो टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे माई स्कूल पूरा टेक्स्ट यहाँ पे है, तो ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट रिलीज बोथ द कीज व्हेन द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड, और जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए तो आप कीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर हाईलाइटेड इन ब्लू एज शोन, आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो जो है हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर से, एंड द कर्सर डिसअपीयर, और जो कर्सर है वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड टू डीसेलेक्ट द टेक्स्ट प्रेस ESC की, आप देखोगे कीबोर्ड के कॉर्नर अप साइड लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर एक ESC की बना हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो ये वर्ड इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड अप टू हियर? नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। सो ए फॉन्ट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिज़ाइन। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, स्टाइल्स होते हैं और साइज होते हैं। ओके, so you can change the font size and font color of this selected text using the commands in the font group। ठीक है, और आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दी कमांड, जो फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट चेंजिंग फॉन्ट, हाउ टू चेंज फॉन्ट। तो टू चेंज फॉन्ट यू विल क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट ऑप्शन। यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है, ठीक है, यू कैन सी फॉन्ट ऑप्शन, व उसके बगल में एक एरो, ड्रॉप डाउन एरो बना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यू कैन सी फिगर 6.9। जब आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ढेर सारे फॉन्ट के स्टाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो उसमें से जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चूज़ करना है, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए उसको आप चूज़ करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट साइज़ आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज हियर यू कैन सी इन फिगर 6.8, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया हुआ है। ठीक है, और ये फॉन्ट साइज के बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो दिया है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी फिगर 6.10 इस तरह का स्क्रीन पे आपको ओपन होगा। इसमें से जो भी आपको फॉन्ट का साइज़ चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय दिस यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज। एंड नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट कलर। एंड टू चेंज फॉन्ट कलर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट कलर ऑप्शन। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, हियर यू कैन सी। ठीक है, फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो दिया, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कलर्स के लिस्ट ओपन होंगे। ओके, तो चूज़ ए कलर एंड क्लिक ऑन इट। तो इसमें से जो भी कलर आपको चाहिए आप उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, चूज़ करके उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ चूज़ ए फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग। और अगर आपको जो है आपके कोई भी चेंजेस करनी है
तो इट्स बेटर कि आप जो है वो सारे चेंजेस को आप पहले स्टार्टिंग में ही कर लो, ठीक है। अभी आप अपने टेक्स्ट को टाइप करने के पहले आप फॉन्ट है, फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज आप पहले से चूज़ करो, दैट इज़ मोर बेटर। ओके, so now next topic is saving a document. How to save a document? The steps are, first you will click on file tab, पहले file tab पे क्लिक करेंगे, ओके और वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन रहेगा, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, ठीक है। और जब आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं हियर फाइल नेम, नीचे फाइल नेम दिया हुआ, ठीक है। आप वहाँ पे जिस नेम से अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप वो नेम एंटर करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे वो नेम टाइप करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन सेव, ठीक है। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्लिक हो जाए सॉरी आपका फाइल सेव हो जाएगा, ओके। सो बाय दिस यू कैन, और एक और वन मोर शॉर्टकट की इज देयर टू सेव अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+S। आप बस अगर Ctrl+S करते हैं तो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा देन अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसका जो टाइटल बार रहेगा, तो जिस नेम से आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किया है तो जब भी आप ओपन करेंगे तो उसका टाइटल बार जो है उस नेम से ओपन होगा। अंडरस्टूड? सेव एंड सेव ऑप्शन वर्क अलाइक व्हेन यू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेव और सेव एज ऑप्शन जो है जब भी हम डॉक्यूमेंट के सेव करते हैं तो दोनों एक तरह ही वर्क करते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव चेंजेस इन ए सेव्ड फाइल, क्लिक ऑन सेव। अगर आप जो है कोई चेंजेस करना चाहते हैं सेव्ड फाइल में तब आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जो है कोई चेंजेस नहीं चाहिए देन यू विल क्लिक ऑन सेव एज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। हाउ टू ओपन डॉक्यूमेंट? तो फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन फाइल टैब, पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब तो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से जितने भी फाइल्स है यहाँ पे, इनमें से जो भी फाइल आपको ओपन करनी है यू विल सेलेक्ट दैट फाइल, ओके एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दैट फाइल यू क्लिक ऑन ओपन। और जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल डॉक्यूमेंट वो ओपन हो जाएगा। एंड शॉर्टकट की टू ओपन ए सेव्ड फाइल इज, ठीक है, कोई भी सेव्ड फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो यू विल प्रेस Ctrl+O, ओके, यू विल प्रेस Ctrl+O टू ओपन ए सेव्ड डॉक्यूमेंट। अंडरस्टूड? द रिसाइकिल ऑप्शन ऑफ द फाइल टैब डिस्प्लेज द रिसेंटली ओपन फाइल्स। और फाइल टैब पे वहाँ पे रिसेंट ऑप्शन रहता है, ठीक है, फाइल टैब पे रिसेंट ऑप्शन रहता है और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली जो भी फाइल आपने ओपन की है वो सारा वहाँ पे आपको शो करेगा। अंडरस्टूड अप टू हियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग और एग्जिटिंग MS Word. The next topic is closing or exiting MS Word. So to close a document in MS Word, the steps are click on File tab and after that click on Exit tab, ठीक है। और जब आप Exit tab पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा मैसेज बॉक्स ओपन होगा विच यू कैन सी इन फिगर 6.16, ठीक है। उसमें आपको इट विल आस्क डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट, ओके। तो इसमें से आप व्हाट यू विल डू, तो इफ़ यू ट्राई क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग MS Word डिस्प्लेस ए मैसेज। अगर आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है क्लोज कर रहे हैं बिना उसको सेव किए तो वो एक मैसेज पूछता है कि क्या आप उस फाइल को सेव करके ओपन करना क्लोज करना चाहते हैं या बिना सेव किए ही क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर आपको जो है उसको सेव करके जो है क्लोज करना है देन यू विल क्लिक ऑन सेव, ओके। और अगर आपको जो है उसको सेव नहीं करना है देन क्लिक ऑन डोंट सेव, योर MS Word विल बी एग्जिटेड। So by this your chapter gets over. Hope you all understood the chapter well. So please watch the video very well. Don't leave anything. Okay. और प्लीज़ वन रिक्वेस्ट इज देयर, आप जो वीडियो को प्लीज़ भगा भगा के मत देखिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर। So if you all understood the chapter, please like my video, subscribe my channel. Have a nice day. Bye bye.